लाइटिंग ही नहीं है यार, बहुत ही घटिया लाइटिंग है गाइस. Wait a minute, let me just find a perfect place to record. I think this is perfect. Yep. Cool, this is perfect. Perfect. अरे सब टेढ़ा हो गया. अरे hello all beautiful and lovely people out there. First of all, before we proceed further, I just want to tell you that a very happy new year to all of you. I know मैं बहुत ही ज़्यादा, not that ज़्यादा, but yeah, I know मैं बहुत ज़्यादा late wish कर रही हूँ, but who cares, you know? I mean, happy new year is a happy new year. I mean, पूरा January, you know, हम सबको happy new year ही बोलेंगे. I don't know. Please ignore my bad jokes. But anyways, I hope, you know, मैं सीरियसली मैंने Q&A वाला वीडियो भी मैं अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था. आई नो दैट, यू नो, मेरे को दिसंबर में वो अपलोड करना था बट नहीं हो पाया. एंड देन अगेन मैं न्यू ईयर पे भी कुछ अपलोड नहीं कर पाई थी. मेरा न्यू ईयर पूरा फीवर एंड ऑल पे गया था. माई न्यू ईयर वॉज, मैं लिटरली आई डिडंट हैड दैट स्ट्रेंथ टू, यू नो, मैं लिटरली उस हालत में नहीं थी दैट, यू नो, आई शुड गो एंड रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट वीडियो. मतलब वो भी जो भी मैं कुछ नहीं कर पाई. So here we are again after a very long gap, guys. You know I am trying my level best कि मैं थोड़ा consistent रहूँ, and I know I have to work on myself. I have to work on that. Anyways, I just want to ask you, like, how are you guys? You know, I hope, you know, आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा था. And even if it wasn't, I just want to tell you that that's okay, you know, God is there. I mean, मैं जब you know, मैंने Instagram and Facebook में ऐसे देख रही थी and I saw that, you know, बहुत सारे लोगों का न्यू ईयर was not great, मतलब they didn't had a great start. But I just want to remind you one thing that, you know, इवन इफ अगर आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा था, अगर नहीं भी था, इवन अभी भी नहीं है, यू नो व्हाट्स द ब्यूटिफुल एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सिचुएशन और वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ इज दैट, यू नो, Jesus is present in your situation. चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, he is present, and that is the most beautiful thing. Like, you know, चाहे कुछ भी हो, tough moments हो, tough season हो, tough January हो अगर आपका अभी भी, but I just want to tell you one thing that, you know, God is watching. He is present in your situation. Don't think that, you know, he's not looking at you. He don't know. Matlab, he doesn't care about you. No, that's the lie of the enemy, first of all. But yes, God is giving you the strength to, you know, face that challenge. So, yep, you're not alone. You are not alone. Okay? And I एक्चुअली, यू नो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये Q&A वाला पार्ट रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि रियली आई वाज वेटिंग, क्योंकि मेरे को सीरियसली मैं सोच रही थी कि यार बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है एंड इसी साल मुझे अपलोड करना है इसको. तो आई वाज लाइक कि चलो यार, मैं लास्ट टाइम भी आई कुडंट अपलोड इट, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. एंड देन आज मेरे को टाइम मिला. आई वाज लाइक नहीं यार, आज तो कुछ भी करके हर हाल में करना पड़ेगा. सो हियर वी आर. And I actually received a lot of questions from you guys and मैंने सारा literally नहीं उठाया है. मैंने बहुत you know important questions उठाए हैं. बहुत सारे questions थे and मैंने बहुत relevant questions उठाए क्योंकि मेरे को, I was really very excited, you know, to answer all of your questions. मैं seriously बहुत ही ज़्यादा excited हूँ and I couldn't wait to, you know, seriously record this one. तो मैं सोचा यार नहीं, आई हैव टू डू दिस, लाइक, यू नो, मेरे को बहुत ही जल्दी इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो हियर वी आर एंड लेट्स गो हेड विद द क्वेश्चंस. let's make it, you know, interesting. So let's go ahead with the first question, which is एक मिनट. Okay, sorry for the pause, guys. Okay,
The first question is, what is the most unexpected piece of advice you ever received? Okay. सीरियसली मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं, जब से मैंने ये सवाल पढ़ा है तब से मैं लिटरली, मुझे अभी तक याद नहीं आया कि व्हाट इज़ दैट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड. आई मीन सीरियसली, मैं सच बताऊं, मेरे को ना थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है. मैं आजकल चीज़ें याद नहीं रखती है. सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता है. मेरे को अगर किसी ने कोई काम बोला और अगर मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती है, कुछ भी होता है, मैं अगले सेकंड में मैं भूल जाती हूँ कि ओके ऐसा कुछ काम था. एंड उसकी वजह से लिटरली मेरा कहीं पे बहुत सारा ऐसे chaos हुआ है. एंड मैं तब से, जब से मैंने ये सवाल पढ़ा, मैं तब से सोच रही हूँ यार कौन सा एडवाइस मेरे को मिला, यार क्या, व्हाट इज़ दैट एडवाइस जिनसी, आई यू लाइक मैं अपने आप से आई एम लाइक शॉक्ड कि यार ऐसा कौन सा, लाइक याद नहीं है तुझे, आई मीन इट्स लाइक दैट. आई एम लाइक यार व्हाट इज़ दैट. एंड मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे को कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ एडवाइस मिला है. एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट. मैं अपना बचपन से लेके टीनेजर से लेके अब तक का मैं सोच रही क्या था यार, क्या है. आई मीन व्हाट इज़ दैट यार जिनसी, व्हाट इज़ दैट पीस ऑफ एडवाइस. आई मीन सीरियसली यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग. लाइक यार सीरियसली मेरे को अभी तक याद नहीं आया. एंड आई होप दैट आज इस वीडियो के अंत में मुझे याद आ जाएगा कि व्हाट इज़ दैट अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड. गॉड प्लीज हेल्प मी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़, आई आस्क वन क्वेश्चन, क्या पीरियड्स में बाइबल रीड कर सकते हैं? थोड़ा हार्ड है बट दिल में आया, सो आई आस्क्ड यू. मेरा एग्ज़ाम तो नहीं हो रहा ना. एनीवेज ओके, सी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी मैं इस टॉपिक को, बिकॉज ऑलरेडी ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत सारे लोगों के लिए. सो व्हाट्स द सिंपल एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ इज़ दैट येस यू कैन, लाइक आप पीरियड्स के टाइम पे बाइबल पढ़ सकते हो, आप पीरियड्स के टाइम पे चर्च भी जा सकते हो. आई नो जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं, हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं, तो उसमें पीरियड्स के टाइम पे विमेंस वर नॉट अलाउड टू वो किसी से मिल नहीं सकते थे और कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते थे. देवर उस टाइम पे विमेंस को अनक्लीन माना जाता था. येस. एंड जो उनको आई मीन देर, अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है दैट वो अनक्लीन है, जो उनको छुएंगे वो भी अनक्लीन हो जाएंगे, यू हैव टू वॉश योर सेल्फ एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें थी. एंड उसमें एक और एरिया में एक ऐसा चीज़ लिखा है कि आप व्हेन यू आर इन योर पीरियड्स, तो 7 days के लिए विमेन आर ट्रीटेड एज अनक्लीन. उनको दे आर नॉट प्योर, मतलब उनको क्लीन नहीं माना जाता था. तो 7th डे के बाद, मतलब 7 दिन के बाद 8वें दिन में उनको, जब उनका पीरियड्स ओवर हो जाता था, तो उनको क्या करना होता था, उनको सैक्रिफाइस लेके प्रीस्ट के पास जाना होता था. सो दैट जो सैक्रिफाइस है, आई थिंक वहाँ पे डव एंड ऑल के बारे में लिखा है दैट उनको वो चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी. और जब प्रीस्ट उसको ऑल्टर में सैक्रिफाइस करते थे, तब जाके विमेन क्लीन होते थे, तब उनको साफ सुथरा माना जाता था, क्योंकि उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता था. नाउ नए नियम में, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए ही डाइड फॉर अस, उसने हमारे लिए लहू बहाया, उसके लहू, उसका जो सैक्रिफाइस है, उसने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी आर क्लीन. उसके सैक्रिफाइस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम लोग क्लीन हैं. ओके, सो येस वी कैन गो टू चर्च, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे सारे गंदगी को, सारे पाप को, सारे शराब को अपने ऊपर लिया. उसने अपना बलिदान दिया, उसने अपना लहू बहाया. उस सैक्रिफाइस की वजह से, उसके यीशु मसीह के लहू की वजह से अब हमें चर्च हो या परमेश्वर की उपस्थिति हो, वी हैव दैट एक्सेस. इज़न्ट इट ग्रेट? इट इज़. उसके लहू के द्वारा वी हैव दैट एक्सेस टू गो इन टू द होली प्लेस. हमारे पास आज वो एक्सेस है. आई मीन सी वी आर ब्लेस्ड. सो येस गाइज, जिसको भी ये डाउट है, वी कैन, हम चर्च जा सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस. परमेश्वर का लहू हैज़ मेड इट ईजी फॉर ऑल ऑफ अस. आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो क्या लोगों को इससे दिक्कत होती है?
You guys are really very naughty, okay? ओके सीरियसली ये क्वेश्चन मेरे को सच में ऐसे लगा कि मज़े के लिए पूछा है, बट देन आई वांटेड कि मैं इस चीज़ का जवाब दूं क्योंकि दिस इज़ सीरियस, ओके? सो नो, आपके परमेश्वर में बढ़ने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो है शैतान. आपके परमेश्वर में बढ़ने से सिर्फ एक इंसान को प्रॉब्लम है. प्लीज़ आप ये अपने दिल में, अपने मन में, अपनी आत्मा के अंदर प्लीज़ इस बात को डाल लीजिए कि अगर किसी को आपके बढ़ने से प्रॉब्लम होती है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर में बढ़ने से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो सिर्फ एक ही इंसान है, वो है शैतान. उसके अलावा किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती. और क्योंकि शैतान को प्रॉब्लम होती है तो शैतान क्या करता है, हमारे मसीह भाई बहनों के अंदर स्पिरिट ऑफ जेलसी, स्पिरिट ऑफ एनवी, उन सब चीज़ों को डालने की कोशिश करता है. पीपल, लेट मी टेल यू, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइज, दिस इज़ वेरी सीरियस. लाइक प्लीज़ आप लोग, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ आप लोग अपने मसीह भाई बहनों को बुरा बनाना छोड़ दो. लाइक इट्स हाई टाइम कि आप डू नॉट बी ऑब्सेस्ड विद देम. लाइक सीरियसली, आपके मसीह भाई बहन, नोबडी इज़ परफेक्ट, आई नो दैट, नोबडी इज़ परफेक्ट. लेकिन आपके बढ़ने से, आपके परमेश्वर के अंदर आपको प्रमोशन मिलने से उनको नहीं प्रॉब्लम होता है. मैं अगर आपको एक एग्जांपल रख के बताती हूँ, ओके? अगर मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरा मसीह भाई बहन है, अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, या चलो आप अपने आप को, जिसने भी मुझसे ये सवाल पूछा है, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन, ओके, दिस इज़ नॉट फॉर दैट पर्सन, दिस इज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब चल रही है. सो आई जस्ट वांट टू आंसर दिस, दैट दिस इज़ फॉर एवरीवन, कि आप अपने आप को अपने उस सिचुएशन में रखो, ठीक है? आप इमेजिन करो, आप हो और आपका कोई मसीह भाई बहन है, ठीक है? आप सबको ले लो, एक को नहीं, क्योंकि हम जब जिसको पसंद करते हैं वो बढ़ता है तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमको ज़्यादा प्रॉब्लम वही होती है जिससे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. जब वो बढ़ने लगता है तो हमको प्रॉब्लम होती है, राइट? तो मैं आपको बोलूँगी आप सबको रखो, और अगर वो मसीह में बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वो आगे उसका प्रमोशन पे प्रमोशन, हर चीज़ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, सब चीज़ें हैं, सो आपको प्रॉब्लम हो रही है? जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ. आप उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है उनके बढ़ने से. क्योंकि सी, अगर हो रही है तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ गॉड. परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का कैरेक्टर हमको वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमको अपने भाई बहनों को अपने से बेहतर मानना है, हमको उनको अपने से उत्तम मानना है, राइट? आई नो ये सब चीज़ें करना, बोलना जितना आसान है, ये करना और ही मुश्किल होता है. लेकिन लेट मी टेल यू पीपल, हम जितना परमेश्वर की उपस्थिति में अपना टाइम बिताएंगे, जितना परमेश्वर के करीब हम रहते रहेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये सब करना उतना ही आसान हमारे लिए होता जाएगा. क्योंकि वी विल बी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स गॉड, वी विल बी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द होली स्पिरिट. क्योंकि अगर हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ जेलसी या एनवी आ रहा है, अगर किसी को देख के, किसी की बढ़ोतरी को देख के, तो लेट मी टेल यू, उस टाइम पे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रे दैट लॉर्ड, आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ जेलसी, आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ एनवी. मेरा भाई मेरे से भी बड़ा, मेरे से भी अच्छा बने, मेरे से भी बेहतर बढ़े, मेरे से भी, यू हैव टू ब्लेस दैट पर्सन. क्योंकि आप शैतान को उस टाइम पे काम करने नहीं दे सकते. हमारी प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है, जब ऐसा कुछ होता है ना, तो हम उस चीज़ को बाइंड करने के बजाय हम उस चीज़ को और उछालने की कोशिश करते हैं अपने अंदर ही अंदर, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते कि ये चीज़ गलत है. बाइबल में लिखा है दैट यू नो, तुम उनको उनके फलों से जान पाओगे. नाउ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज़ नॉट जेलसी एंड एनवी, राइट? वो परमेश्वर का फल नहीं है. सो जब आपके अंदर किसी के लिए कड़वाहट आती है, जब आपको देख के किसी के लिए जेलसी हो रहा है, जब आपको किसी को देख के एनवी हो रहा है, लेट मी टेल यू गाइज, उस टाइम पे प्रार्थना करो और उस चीज़ को, उसको वहीं पे बाइंड करो और अपने अंदर परमेश्वर का वचन बोलो, अपने अंदर परमेश्वर के फलों को बोलो, अपने अंदर परमेश्वर के कैरेक्टर को बोलो. सो यू हैव टू यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको वो चीज़ नाप तोलनी पड़ेगी कि क्या परमेश्वर की ओर से और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है. और अगर आपके भाई बहनों के अंदर, जैसे अभी जिन्होंने भी सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि उनको प्रॉब्लम क्यों होती है, तो अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो पीपल प्रे फॉर देम.
ओके, प्रे फॉर देम। आप उनके लिए प्रार्थना करो। अगर उनके मन में ऐसी बातें आती है आपको देख के, आप उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को एकता में रहने के लिए बुलाया है, ना कि देह के अंदर डिसयूनिटी नहीं हो सकती। देह परमेश्वर की देह, हम परमेश्वर की देह है, कलीसिया परमेश्वर की देह है, और हमको यूनिटी में काम करना है। तो अगर हमारे बीच में डिफरेंसेस आएंगे, ऑब्वियसली आएगा, डिफरेंसेस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, सब चीज़ें होगी, उन सब बातों को हमें ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। आप या तो उस बात के लिए प्रार्थना करो, और अगर आपके दिल में किसी के लिए कुछ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई बात है, आप जाके या तो उनको मैसेज कर दो, या तो फिर आप उनसे जाके बात करो। प्रार्थना करके शैतान को अनुमति मत दो कि आपके दिल के अंदर वो कड़वाहट की जड़ पैदा करे। एक कड़वाहट की जड़ को अगर आपने अंदर आने दिया और आप उसको बढ़ावा देते 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 गए, गाइज, आई थिंक इसके आगे मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो सी, विथ ऑल लव एंड ड्यू रिस्पेक्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू पीपल दैट किसी को दिक्कत नहीं होती है। आपके बढ़ने से, आपके कुछ भी करने से किसी को दिक्कत नहीं होती है। आई टोटली कैन अंडरस्टैंड यू। मैं भी एक टाइम पे इस सिचुएशन में थी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, परमेश्वर ने डिसिप्लिन किया, सिखाया वॉट आई हैव टू डू इन दैट सिचुएशन, एंड दैट इज़ वॉट है। मैंने जो आपको अभी शेयर किया वो मैं करती हूँ। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दैट गाइज, प्लीज़ प्रे एंड आप अपने मसीह भाई बहनों को बुरा बनाना छोड़ दो। नो बडी इज़ परफेक्ट, आई नो दैट, लेकिन लीव इट, सब परमेश्वर के हाथ में दे दो। यू आर नो बडी टू चेंज देम। आप उनको नहीं बदल सकते, आप उनको नहीं सुधार सकते। आप अगर एक चीज़ कर सकते हो उनके जीवन के लिए, तो वो है सिर्फ प्रार्थना। आप सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि प्रार्थना ही इंसान को बदल सकती है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सो दैट्स अबाउट इट। सो नो, आपके परमेश्वर में बढ़ने से किसी को दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत सिर्फ एक को होती है, वो है शैतान। So remember this, like seriously remember this.